آج کا جو کلام ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مسیح کے وہ کلمات جو وہ صلیب پر جو ہے ادا کرتا ہے، یا آج ہم اس کا تیسرا کلمہ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تیسرے کلمے کو سیکھنے کے لیے ہم جو ہے یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب میں جو ہے وہ چلیں گے، اور اس کی ہم جو آیات ہیں وہ 25 سے 27ویں آیت کو جو ہے ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا جو ہے ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور یاوشائی کے صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یاوشائی نے اپنی ماں اور اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ کلام خدا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ وہ تیسرا کلمہ ہے جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ صلیب کے اوپر جو ان سے ادا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کلمہ جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ادا کرتا ہے وہ باپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ جو ان سا ہے وہ اس ڈاکو سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہے، اور تیسرا کلمہ جو ان سے ہے وہ جو مخاطب ہو رہا ہے وہ ماں سے اور اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا ہے مخاطب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ گولگوتا جو ہے وہاں پر مصلوب ہو رہا ہے۔ اگر ہم گولگوتے کو جو ہے وہ دیکھیں تو ہمیں کلام خدا جو ہے یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب اس کی 17ویں آیت جو ہے ہمیں بتاتی ہے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گولگوتا ہے۔ گولگوتا جو ان سے ہے، یہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی جو ہم بعد میں دیکھیں گے کسے جو ہے وہ کھوپڑی جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، اسکل سے کیوں اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو کلوری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کلوری جو نام نکلا ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے کیلوا سے، جس کا مطلب ہے بولڈ ہیڈ یا اسکل جو ان سے اس کو لیا جاتا ہے۔ اور یہ یروشلم کے جو ہے نارتھ میں جو ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر یہ پہاڑی موجود ہے۔ یہ پہاڑی بیسیکلی جو ان سی ہے یہ دو غاروں پہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر سے ایک سرا سا جو ہے نکلتا دکھائی دیتا ہے جو کہ اسکل کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گولگتہ میں جو ہے یہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس لیے مصلوب ہوتا ہے کیونکہ اس کے متعلق یہ پیشن گوئی جو ان سی ہے وہ کی گئی ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط جو ان سے ہے اس کا 13ویں باب میں آئیں، اگر عبرانیوں کا خط 13واں باب اور اس کی 11 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا جو ہے ہمیں یوں سکھاتا ہے، عبرانیوں کا خط 13واں باب اس کی 11ویں سے 13ویں آیت، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں، اسی لیے یہوہ شاہ نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ کے باہر اس کے پاس چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے، جو گناہ کی قربانی ادا کی جاتی تھی، وہ اس کے جو خال ہوتی تھی، جو جسم ہوتا تھا، وہ خیمہ گاہ کے باہر جو ہے ایک جگہ جو ہے مخصوص کی جاتی تھی، اور وہاں پہ اس کو جو ہے ان سے وہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور میرا اور آپ کا بھی جو نجات دہندہ ہے اس کو جو ہے یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر جو ان سے مصلوب کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کلام خدا سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ رومی دستور کے موافق جس شخص کو جو ہے وہ مصلوب کیا جاتا تھا اس شخص کا نام
اور اس کا جو جرم ہوتا تھا وہ ایک تختی پر لکھ کر سلیب پر جو ان سے وہ جڑ دیا جاتا تھا. اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ جو ان سے یہ میرے اور آپ کی نجات دہندہ کی بھی جو ان سی ہے، جب اسے سلیب دی جاتی ہے تو اس کا نام اور اس کا جو ان سا جو جرم ہے، اور وہ جرم کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہلوایا ہے، یہ جو ہے اس کو لکھ کے لگا دیا جاتا ہے. اور یہ 3 زبانوں میں، عبرانی زبان، گریک زبان، یونانی اور لاطینی زبان میں لکھ کے لگایا گیا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس لیے لگایا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ وہ لوگ جو کہ ان شخصوں کو جو کہ مصلوب ہو رہے ہیں یا وہ راہ چلتے لوگ جو ان سے انہیں دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ ان کو کس سبب سے جو ان سی ہے سلیب دی جا رہی ہے. اور یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی. اگر ہم زبور کی کتاب 22ویں باب میں آئیں، زبور کی کتاب 22واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کا جو ہے مطالعہ کریں تو کلام خدا جو ان سے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے. زبور 22 اس کی 16 سے 17ویں آیت، کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے طاقتے اور گھورتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز رسول جو ان سے یہ بتاتا ہے کہ لوگ جو اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر تانے کستے تھے. مرکز 15 باب اس کی 29ویں آیت میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بھی جو ہے رومی دستور کے موافق وہ سپاہی جو مصلوب کرتے تھے وہ جو ہے وہ عموماً 4 سپاہیوں کا جو ان سے جو ہے وہ گروہ ہوتا تھا جو کہ ایک شخص کو مصلوب کرتا تھا، اور اس شخص کے جس کو مصلوب کیا جاتا تھا اس کے کپڑے جو ان سے ہیں وہ آپس میں تقسیم یہ 4 سپاہی کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کا جو نجات دہندہ مسیح اس کے لباس کو بھی جب تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا لباس بن سلا ہے، اور اس لیے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر کرا ڈالا جاتا ہے. اور یہ بھی جو ان سے ہے وہ پیشن گوئی کے مطابق پورا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب اور اس کی جب ہم نے 25 سے 27ویں آیت کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس سلیب پر سے جو ہے وہ نگاہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنی اذیت کے باعث جو سے جو سلیب پر سہ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے نیچے اور نیچے اپنی ماں کو کھڑی دیکھتا ہے اور کہتا ہے آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا ہے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے آئے شاگرد دیکھ تیری ماں یہ ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جون سے ہے 5 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی سلیب کے نیچے ہیں، اور وہ 5 لوگ جب آپ یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب اور اس کی 25 سے 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ ان 5 لوگوں کی شناخت جو ان سے وہ کرتے ہیں. پہلی جو شناخت ہے وہ شناخت ماں مریم کی ہے، دوسری ماں مریم کی بہن جو ان سی ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، تیسری عورت جس کا ذکر ہے وہ ایک اور مریم ہے اور وہ مریم جو ان سی ہے وہ کلوپاس کی بیوی ہیں، چوتھی جو ان سی ہے عورت وہ مریم مگدلینی ہے، اور 5واں وہ شاگرد ہے جس سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ محبت رکھتا ہے. یہ وہ 5 جو ان سے ہے وہ اس کے قریبی عزیز ہیں، اس کو قریبی جاننے والے ہیں، جو باوجود اس کے کہ اس کے شاگرد رومیوں کے خوف سے، یہودیوں کے خوف سے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، یہ 5 لوگ جو ان سے ہیں وہاں پر وہ موجود ہیں. اب یہ سوال جو ہے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ماں مریم جو ان سے ہے وہاں پہ اس وقت کیوں موجود ہیں. تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے
हम लूका रसूल की अंजील अगर दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत का मुतालिया करें, लूका रसूल की अंजील दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत, तो कलाम खुदा जो उनसा है वो हमें यूं सिखाता है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। ये दस्तूर के मुआफिक जो है, जो 3 ईदों के ऊपर जो है वो यहोवा खुदा का हुक्म था कि इन 3 ईदों को जिस जगह को मैं मखसूस करूंगा तुम उन 3 ईदों पे जो उनसे वो जाया करना। तो ये ईद फसा का मौका है जब मेरा और आपका निजात दहिंदा जो फसा का बरा है वो कुर्बान हो रहा है, और बचपन से जो है वो मां मरियम और यूसुफ जो है वो ईद फसा के मौके पर यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो यरूशलेम में जमा होते हैं। और ये वो रीजन है कि मां मरियम अब यूसुफ जो है वो तो हयात नहीं है, लेकिन मां मरियम अपनी सहेलियों के साथ जो है वो वहां पर यरूशलेम में मौजूद हैं जब मेरा और आपका निजात दहिंदा मसलूब होने के लिए जा रहा है। और ये वो वजह है कि मां मरियम जो है वो सलीब के नीचे उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हम यहां पर देखते हैं कि वो अपनी सहेलियों के साथ जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हम ये देखते हैं कि यहां पर जौन सा है एक पेशन गोई जौन सी है वो भी पूरी जो है वो हो रही है। मां मरियम को जो है लूका रसूल की इंजील जो है दूसरे बाब में जो है जब आप चलते हैं उसकी 35वीं आयत में, तो वहां पे कलाम खुदा जो है वो यूं बयान करता है, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। ये वो पेशन गोई थी जो शिमौन जो है नबी जब हैकल में जो है उसको देखता है मसाया को, तो वो ये कहता है कि ये बच्चा जौन सा है ये छेदा जाएगा, ये तेरी जान जो ये दुख उठाएगा और तेरी जान जौन सी है वो घायल की जाएगी। और आप देखते हैं कि लिटरली जौन सा है मां मरियम का मसीह की जो है मसलूबियत के वक्त होना इसलिए लाजिम था ताकि इस पेशन गोई को भी पूरा किया जा सके। हम यहां पे देखते हैं कलाम खुदा के अंदर कि मेरा और आपका मसाया जो लफ्ज अदा करता है, यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब और उसकी 26वीं आयत में, तो वो ये वो लफ्ज अदा करता है, वो कहता है याशाय ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत था पास खड़े देखकर मां से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। जब हम इन अल्फाज को देखते हैं कि ये जो वर्ड यूज किया गया है आए औरत, वुमन का वर्ड जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, अगर हम इसकी यूनानी जुबान में इसको देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस यहां पर 1135 जौन सी है इसका स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है। ये गुने जौन सा है ये वर्ड है यूनानी जुबान का जिसका तर्जमा औरत के तौर पर किया गया और वुमन इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया। जब हम इसको देखते हैं ये जो गुने है वर्ड, ये गुने वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है औरत के लिए, ये इस्तेमाल होता है बीवी के लिए, और ये इस्तेमाल होता है नहायत ही जो मोहतरम किसी को जो औरत हो उसको मुखातब करने के लिए। यहां पे मेरा और आपका खुदा हरगिज हरगिज जौन सा है वो ये नहीं बता रहा कि मुकद्दसा मरियम जौन सी है वो उनकी मां नहीं है, बल्कि यहां पे अगर आप कलाम खुदा के अंदर से देखें तो कलाम खुदा आपको एक इशारा देता है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा का अब रिश्ता उस औरत से जिसके बतन से वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है वो तब्दील हो रहा है। वो रिश्ते को किस तरह तब्दील हो रहा है हम आगे चलकर देखेंगे। हम यहां पे देखते हैं कि ये औरत मेरा और आपका मसाया, आपका निजात दहिंदा जो उनसे पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो ये पहले भी जो सा है वो जब काने गलील में जो सा है वो
मां मरियम जो है उसे कहती हैं कि तू जो सा है इनके लिए कुछ कर, तो वो कहता है औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो ये जो औरत वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो गुने वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये हरगिज बेअदबी का वर्ड नहीं है। ये जो सा है नहायत ही अदब के लिए, जो सा एक ऐसी हस्ती के लिए, एक ऐसी खातून के लिए जो जिसकी नहायत जो सी इज्जत और एहतराम हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल यूनानी जबान में अदा किया जाता है। और मेरा और आपका मसाया भी जो है ये वर्ड जो सा इस्तेमाल करता है। हम इस रिश्ते को जो है वो देखते हैं कि ये रिश्ता जो सा है वो अब वो तब्दील हो रहा है। सलीब के ऊपर जो सा है मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो अपना खून जो सा है वो इसलिए बहा रहा है ताकि उसके खून के बहाने से वो गुनाह जो जिनकी मजदूरी मौत हमारे लिए मुकर्रर हो चुकी है, उस मजदूरी से हमको रिहाई दे सके। और कोई एक बशर भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में पैदा हुआ, जो इस दुनिया में पैदा होगा, या जो इस दुनिया में पैदा हुआ था, उसने गुनाह ना किया हो। और जब उसने गुनाह किया तो गुनाह की वजह से वो मौत का हकदार ठहराया गया। और अगर जो सा है मेरा और आपका निजात दहिंदा उस खून को जो सा है बहाता नहीं है, जिसके बहाने से हमें इस गुनाह की मजदूरी से निजात मिलनी है, तो हम उस मजदूरी के हकदार ठहराए जाएंगे। हम देखते हैं वो कहता है, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। ये किस बेटे के मुतालिक बात कर रहा है? कलाम खुदा के से जब हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बेटा जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है ये यूहन्ना उसका वो शागिर्द है जिससे वो मोहब्बत रखता है। और ये शागिर्द जो सा है ये भाई है याकूब का, जिसको इंग्लिश में जेम्स कहा गया है और उर्दू में उसे याकूब कहा गया है, लेकिन उसका नाम जो सा है वो इब्रानी जुबान में याकूब है। और ये जब्दी के बेटे हैं और ये उसके शागिर्द हैं। और हम मत्ती रसूल की इंजील 10वें बाब में जब चलते हैं, मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब, और उसकी जब हम आयत 2 आयत से 4 आयत का मुताला करते हैं तो हम कलाम खुदा को यूं सीखते हैं। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब, जिसको उर्दू में याकूब ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में जेम्स ट्रांसलेट किया गया, इब्रानी जुबान में उसको याकूब कहते हैं। जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, ये वो यूहन्ना है जो जब्दी का बेटा है और याकूब का भाई है। ये वो शागिर्द है जिसके मुतल्लिक जो है मेरा और आपका निजात दहिंदा तीसरा कलमा अदा करता है। मां मरियम को मुखातिब होकर कहता है, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। हम देखते हैं अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर मुसाया के और बहन भाई मौजूद थे तो फिर जो सा है मुसाया को क्या जरूरत पड़ी कि वो अपने शागिर्द को अपनी मां को सौंपे। हमने इसको तफसील से सीखा था जब हमने देखा था कि मुसाया के बहन और भाई जो है उनका जिक्र है, 4 भाइयों का जिक्र है और 2 बहनों का जिक्र है। चारों भाइयों के नाम जो उनसे हैं वो मौजूद हैं। हम देखते हैं हमने उससे ये भी सीखा था कि मसीह की मसलूबियत तक उसके भाई जो हैं उस पर ईमान नहीं लाते, और जब वो ईमान ही नहीं लाए तो वो यरूशलेम के अंदर उस सलीब के मौका के ऊपर जब मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब के लिए जो सा है वो दुख उठा रहा है, सलीब पर चढ़ा हुआ है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। जब उसके शागिर्द जो उसकी मिनिस्ट्री के दौरान उसके साथ साथ रहे,
जब पतरस रसूल जो कि ये कहता है मैं जान देने तक तेरा वफादार रहूंगा, जब पतरस रसूल उसे छोड़कर भाग जाता है, तमाम शागिर्द जो उनसे तितर बितर हो जाते हैं, तो वो भाई जो कि उस पर ईमान ही नहीं लाए, हम देखते हैं वो भाई वहां पर मौजूद नहीं है। और मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब पर से जो है निगाह करता है और अपने 5 इन अजीजों को जो है वो देखता है और अपनी मां से मुखातिब होता है और अपने शागिर्द को देखते हुए मां से कहता है, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। हम सीखते हैं कि ये वो रिश्ता जौन सा है, वो मां का रिश्ता जो बेटे के साथ मौजूद है, वो रिश्ता तब्दील हो रहा है, वो रिश्ते की नोयत तब्दील हो रही है। अब वो रिश्ता जौन सा है वो एक बेटे का नहीं बल्कि उस औरत के लिए एक निजात दहिंदा का रिश्ता जौन सा है जुड़ रहा है। उस औरत को जौन सा है अब निजात मिल रही है, जिस तरह मुझे और आपको जो है उसके खून बहाने से निजात मिल रही है, उस औरत को भी जौन सा है अब वो उसके गुनाहों से उसको निजात मिल रही है। एक बशर भी ऐसा नहीं जिसने गुनाह ना किया हो, एक बशर भी ऐसा नहीं जो उस गुनाह की मजदूरी जो कि मौत ठहराई गई उससे बख्शा गया हो। उसके सिर्फ खून बहाने से हर एक को निजात हुई। और अब ये जो रिश्ता तब्दील होता है वो इसलिए तब्दील हो रहा है कि अब वो बेटा निजात दहिंदा जौन सा है वो बन रहा है और वो सबका निजात दहिंदा बनता है। और इसको आप अगर अमाल की किताब पहली बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर देखें कि ये रिश्ता जो है वो किस तरह से तब्दील होता है, तो आप देखते हैं कि पैंतीकोस्त के दिन जब रूह कुदस नाजिल होता है तो तमाम रसूल वहां पर मौजूद हैं, मसाया के भाई मौजूद हैं जो उस पर उसकी मसलूबियत के बाद उसके जिंदा होने के बाद ईमान ले आए हैं। मां मरियम मौजूद हैं वहां पर। ये किस लिए मौजूद हैं? ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हुक्म दिया गया था कि जब तक रूह कुदस तुम पर नाजिल ना हो जाए यही ठहरे रहना। और ये उस हुक्म के जो है मुंतजिर हैं, उस कुव्वत के लिबास को हासिल करने के मुंतजिर हैं जिसका वादा किया गया था। और ये आप अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर देखते हैं। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 14वीं आयत यूं बयान करती है, ये सब के सब चंद औरतों और यहोवा शाही की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। तमाम के तमाम 120 लोगों की जमात वहां पर मौजूद है, उस हुक्म के मुताबिक मौजूद है। अब वो उस निजात को हासिल कर चुके हैं। अब वो उस तकवीयत का लिबास जो उनसे है उसे उस वादे के मुताबिक हासिल करना चाहते हैं। उसके भाई ईमान ले आए हैं और वो भी जो है रूह कुदस हासिल करते हैं। और ये वो रिश्ता है, ये वो अल्फाज हैं जो वो अदा करता है। वो मां कहकर नहीं पुकारता, वो जानता है कि अब सबको जिस मकसद के लिए मैं आया था उस मकसद को मैं पूरा करने को हूं। अब सबकी जौन सी है उस गुनाह की मजदूरी से मेरे खून बहाने से खुलासी होनी है। सबके साथ एक ही रिश्ता पेवस्त किया जा रहा है। सबके साथ जौन सा है निजात दहिंदा जो है वो एक ही रिश्ता इस्तवार कर रहा है। और ये रिश्ता मां मरियम के साथ भी इस्तवार होता है। और अगर ये रिश्ता उस वक्त तब्दील ना किया जाता तो हर वो शख्स जो उसके खून बहाने से उस खून के वसीले से उसके गुनाहों की माफी ना हो पाती तो वो गुनाह की मजदूरी जो मौत है उसका हकदार ठहराया जाता।
हम देखते हैं कलाम खुदा के हमें शुक्र है कि हम सीखते हैं अमूमी तौर पर इसको मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। अमूमी तौर पर महज ये कहकर बता दिया जाता है कि उसने अपनी मां को नीचे खड़े देखा सलीब पर से, और उसके अंदर जौन सी है मां की मोहब्बत जागती है, और मां की मोहब्बत जौन सी है की वजह से वो कहता है, क्योंकि अपना वो फर्ज पूरा करना चाहता है, वो कहता है कि आए औरत। वो आए औरत पुकारता है क्योंकि वो जानता है कि अब से ये रिश्ता जौन सा है वो एक बाप और बेटी का रिश्ता ठहरेगा। अब वो जा रहा है बाप के दाहिने हाथ बैठने। अब वो निजात जो सा है वो बख्श दे रहा है। वो कलाम खुदा हमें सिखाता है माल की किताब के अंदर कि तमाम लोग जो है वो उस जगह पर मौजूद हैं उस कुव्वत को लिबास को हासिल करने के लिए। हम देखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जौन सा है वो सबकी निजात के लिए जौन सा है वो अपना खून बहा रहा है। हम देखते हैं वो कहता है, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। वो अपने जिस्मानी फरीजा भी अदा कर रहा है। वो पहलौठा है। कलाम खुदा हम देखते हैं कि वो मरियम का पहलौठा है, वो उसका पहला बच्चा है। ये कलाम खुदा हमें सिखाता है। कलाम खुदा ने ये नहीं कहा कि वो इकलौता है। कलाम खुदा ने बताया वो पहलौठा है, पहला बच्चा है। और पहला बच्चा जो है यहूदी दस्तूर के मुताबिक उसका ये फर्ज होता था कि वो अपने मां बाप की जौन सी है वो उनकी खिदमत जो है वो करे, उनकी देखभाल जौन सी है उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और ये वो अब जिम्मेदारी जो है वो गुनाह सबका जो है उठा रहा है, वो गुनाह से सबको निजात दे रहा है, और अपनी जमीनी जौन सी जो जिम्मेदारी थी वो अब अपने सबसे प्यारे शागिर्द उसको सौंप रहा है। हम यहां पर हमारे लिए एक लेसन है और हम इस लेसन को जो है वो देखते हैं। हम देखते हैं कि हर वो शख्स जो उसको पुकारता है, जो उसका नाम लेवा है, जो अपने गुनाह का इकरार करता है, जो उसके पास आता है, जो उसकी हुजूरी में आकर अपने गुनाह से तौबा तलब करता है, वो कहता है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा। आप देखते हैं कि एक मां फसह के वक्त यरूशलेम में मौजूद है। उसके बेटे को जो है मसलूब करने के लिए ले जाया जा रहा है। औरतें पीछे पीछे चलाती हैं, रोती चली आ रही हैं। मेरा और आपका मसाया, मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब पर से देखता है और वो निगाह करता है इन 5 लोगों के ऊपर। हम देखते हैं कि कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि हर वो शख्स जो उसके करीब जाएगा, जो उसकी हजूरी में आएगा, जो उससे गिड़गिड़ाएगा, जो उससे अपने गुनाहों की माफी तलब करेगा, वो उनको माफ करेगा। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब में आते हैं और उसकी 37वीं आयत का मुतालिया करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब और उसकी 37वीं आयत हमें यूं सिखाती है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। वो आपको ये गारंटी दे रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आप अगर उसके पास जाएंगे, आप अपने गुनाहों को लेकर उसके तरफ बढ़ेंगे,
उससे अपने गुनाहों की माफी तलब करेंगे, वो कहता है कि जो मेरे पास आएगा मैं हरगिज उससे दस्तबरदार नहीं हूंगा, मैं उसे धत्कार नहीं दूंगा, बल्कि मैंने तो खून ही इसीलिए बहाया है ताकि आपको आपके गुनाहों से निजात दे सकूं। हमने कलाम खुदा के अंदर देखा कि ये 5 लोग कौन हैं। हम इसको मुख्तलिफ हवालों के अंदर जो है वो देखते हैं। हम देखते हैं कि मां मरियम जो है यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब की 25वीं आयत में 3 और औरतों के साथ मौजूद हैं। इन 3 औरतों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन 3 औरतों में एक मां मरियम की बहन है और इनका जिक्र जो उनसे है वो मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब की 56वीं आयत में भी मौजूद है। मरकस रसूल की इंजील 15वें बाब की 40वीं आयत में भी मौजूद है। ये जबदी की जो है द मदर ऑफ जबदी सन है। आपने अभी देखा था कि यूहन्ना और याकूब ये वो 2 भाई हैं जो जबदी के बेटे हैं और जबदी मां मरियम की बहन जिनका नाम सलोमी है, जो कि मरकस रसूल की इंजील 15वें बाब की 40वीं आयत में बयान है, ये वहां पर मां मरियम के साथ मौजूद हैं जो यूहन्ना 19वें बाब 25वीं आयत में जिक्र है कि उसकी बहन। हम देखते हैं एक और मरियम का जिक्र है मां मरियम के अलावा और वो क्लोपास की बीवी हैं। ये भी 19वें बाब यूहन्ना रसूल की इंजील 25वीं आयत में जिक्र है और इनका मत्ती रसूल जो है ये बता रहा है 27वें बाब की 56वीं आयत में कि ये याकूब और जोसस, ये 2 इनको लेसर या छोटे याकूब जो उनसे वो जिक्र किया गया है और मरकस रसूल जो उनसा है ये 15वें बाब की 40वीं आयत में इनको याकूब द यंगर एंड ऑफ जोसस बयान करता है। मरियम मगदलीनी जौन सी है ये तीनों जौन सा है जो अनाजील है उसके अंदर मौजूद है। हम देखते हैं कि ये वो 4 औरतें हैं मां मरियम, 3 औरतें हैं मां मरियम के अलावा जो सलीब के नीचे मौजूद हैं। हम देखते हैं इनको तफसील में हमें सीखने की जरूरत नहीं है। मरियम मगदलीनी तीनों गॉस्पल्स के अंदर मौजूद हैं। मरियम क्लोपास आपने देखा ये यूहन्ना रसूल के इंजील के अंदर मौजूद हैं, ये मरकस रसूल के इंजील के अंदर मौजूद हैं और ये मत्ती रसूल के इंजील के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखते हैं कि ये जो क्लोपास की बीवी जिनको मरियम कहकर पुकारा गया है, ये इनको दूसरी औरत या दूसरी मरियम भी कहा गया है और इसको हम जो है वो देखने के लिए अगर आप मत्ती रसूल की इंजील 27वें बाब में आए, मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब और उसकी अगर आप कलाम खुदा के अंदर से 21वीं आयत देखें, 61st वर्स को अगर आप देखें तो वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करता है और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, ये जो दूसरी मरियम और द अदर मरियम जो उनसे है ये मरियम क्लोपास के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब जो उनसे उसकी पहली आयत में भी मज़कूर है और ये दोनों दफा मरियम क्लोपास जो है जो दूसरी मरियम के तौर पर बयान की गई है, ये दोनों मर्तबा मौजूद हैं। ना सिर्फ ईद फसा के ऊपर जब मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब के ऊपर है ये उस वक्त मौजूद है, बल्कि ये उस वक्त भी मौजूद है जब क्या उस कहते हैं उन्हें दफनाया जा रहा है और ये मत्ती रसूल के इंजील जो उनसे
जब वो कब्र पे ऊपर जाती हैं दफनाए जाने के बाद, ये आप मत्ती रसूल की इंजील 28वें बाब की पहली आयत में भी देखते हैं। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ पड़ते वक्त मरियम मगदलीनी भी जो है ये भी मौजूद हैं मां मरियम के साथ उस सलीब के नीचे। और ये मां मरियम के साथ जो है ये जा रही हैं कहां पर, कब्र के ऊपर भी जा रही हैं। तो मां मरियम जो है ये इन्हीं औरतों के साथ फसा के वक्त जो सा है यरूशलेम में यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो मौजूद हैं। हम देखते हैं और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आती हैं। हम यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना रसूल को हमने देखा कि ये मेरे और आपका निजात दहिंदा मसाया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। ये वो शागिर्द है जो कि अपनी मां के साथ जो उसकी मां सलोमी है उसके साथ जो सा है, जो कि मां मरियम की नहायत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी वजह से ये यूहन्ना वहां पर मौजूद है। ये यूहन्ना जो है ये वो शागिर्द है जो कि मेरे और आपका निजात दहिंदा का नहायत ही करीबी, नहायत ही जो है जिससे वो मोहब्बत रखता है, वो वहां पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि उन शागिर्दों में से वो शागिर्द है जो उसके सीने का सहारा लेकर उसे पूछते हैं कि हमें बता कि वो कौन है जो तुझे पकड़वाएगा। और मेरा और आपका मसाया जौन सा है वो उसे बताता है कि आए शागिर्द, आए यूहन्ना, आज से तेरी मां ये है। और हम देखते हैं कि वो शागिर्द जौन सा है एक लम्हे के लिए भी तौकफ नहीं करता, एक लम्हे के लिए भी जौन सा है वो उसे जो है वो परेशानी वो नहीं होती कि ये मुझे कैसी जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है। और हम देखते हैं कि वो शागिर्द जौन सा है वो मां मरियम को लेता है और वो लेकर चल देता है। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर एक दफा फिर से यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब की जौन सा है 25 से 27वीं आयत का मुतालिया करते हैं। और यहोवा शाही की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। हमने देखा कि 3 और दूसरी औरतें, इनकी आइडेंटिफिकेशन हमने की कि ये कौन औरतें हैं। हमने देखा 26वीं आयत में यहोवा शाही ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, हमने इस शागिर्द की आइडेंटिफिकेशन को देखा। देखकर मां से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। हमने सीखा कि मेरा और आपका निजात दहिंदा मां मरियम को जो है वो नहायत अदब से पुकार रहा है। वो उन्हें नहायत ही अदब से ये औरत कहकर पुकारता है, गुने कहकर पुकारता है, जिस जो कि नहायत ही ताजीमी लफ्ज है। और उन्हें ये बताता है कि अब से मेरा और आपका रिश्ता जौन सा है, जो माँ और बेटे का रिश्ता था, वो तब्दील होता है। वो अब से मैं आपका निजात दहिंदा हूं, क्योंकि आपके गुनाह की वजह से वो मौत जो आपके ऊपर ठहराई गई थी, वो दूसरी मौत अब नहीं आने की, बल्कि आपके गुनाह मेरे खून बहाने से बख्शे जाएंगे। और वो जो है उस शागिर्द को वो देखकर वो कहता है, देख तेरी मां ये है। और हमें कलाम खुदा के अंदर से ये सीखने को मिलता है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उससे अपने घर ले गया। हम कलाम खुदा की अगर मजीद स्टडी करें हिस्ट्री को, तो हम बहुत सारी किताबों के अंदर ये मौजूद है कि यूहन्ना रसूल जो है वो आखिर दम तक जो है मां मरियम को जौन सा है अपनी मां का दर्जा देता है, उनकी जौन सी हिफाजत करता है, क्योंकि मेरे और आपके निजात दहिंदा के हुक्म की सताबी करने का मुहतमल नहीं ठहर सकता, वो उसके हुक्म को रद्द नहीं कर सकता। और अगर आप नाइस्फोरस
सेलेस्टियल हिस्ट्री को जो है वो स्टडी करें, इसकी दूसरी किताब और उसके तीसरे बाब को, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर बयान है। ये ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक है। इसको अगर आप स्टडी करें तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि माँ मरियम जौन सी हैं, मेरे और आपके निजात दहिंदा के आसमान पर उठाए जाने के बाद स्कॉलर्स ये बयान करते हैं, तारीख दान ये बयान करते हैं कि वो 11 बरस जौन सी हैं वो जिंदा रहती हैं और जौन सा है बाद में उनकी वफात होती है। हम कलाम खुदा का जौन सा है वो शुक्र करते हैं कि वो हमें कलाम खुदा को सीखने को देता है ताकि हम उसके सिखाए हुए असूलों के मुताबिक, ना कि अपनी समझ को, ना कि अपने उन कलाम सुनाने वाले, ना कि जौन सा है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कलाम को सीखें। हम उसका शुक्र करते हैं कि हम इस हुक्म को सीखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा जौन सा है वो सब के गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ जाता है, अपना खून बहाता है, ताकि उसके खून बहाने से हमारे गुनाह जौन से धुल सकें, ताकि उसके खून बहाने से हम उस दूसरी मौत को जो है वो ना देख सकें, ताकि जो है हम उस निजात को जो है जो उसने हमारे लिए दी है उसमें दाखिल हो सकें और उस हमेशा की जिंदगी के ताज को जो मुकर्रर किया गया है उसको हासिल कर सकें। हम खुदाए कुदूस का शुक्र करते हैं कि हम उसके सिखाए उसूलों को सीख रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम उसके उसूलों को सीखते हुए अपनी जिंदगियों को बसर कर सकेंगे। सब उन लोगों को जो उसके उसूलों को सीखें और अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आएं, बरकत पर बरकत हासिल हो, क्योंकि जो उसके पास आता है वो फरमाता है कि मैं उसे बेयारो मददगार हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आमीन।